Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome. آپ بتائیے اب ہر روز ہم بولیں گے کیا بات. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, خوشامدید کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج. تھینک یو. میں نے کہا گولڈن آپ نے یہ لاسٹ مومنٹ پہ چینج کیا ہے. دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے زندگی میں بھی کہ جو آپ پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو آلویز ہیو اے بیک اپ پلان. سو دس از مائی پلان بی. پلان بی ہی چلا گیا. پلان بی ہی چل رہا ہے. زبردست جی. آج کا شو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. سب سے پہلے تو ہوم منسٹر سندھ ضیاء النجار سے ہماری خصوصی گفتگو ہوگی اور بڑے معاملات ہیں ان سے جس پر بات کرنی ہے ہم نے. پھر کرکٹ بھی ہے. بالکل جی. اور کرکٹ کے ساتھ کیا ہے پھر؟ موسم کا احوال بھی ہے, سیاست بھی ہے, اور انڈس ہاسپٹل کا ایک بہت ہی امیزنگ وزٹ کیا تھا, اس کی کہانی ہے. بہت بڑی اینکر نے انڈس ہاسپٹل کا وزٹ کیا تھا. نہیں ایسا اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ایک اچھے کام کے لیکن ایک ایمبیسڈر آپ کہہ سکتے ہیں انڈس ہاسپٹل کی. میں ایمبیسڈر ہمارے تو بہت بڑی اینکر ہے. ارے نہیں سر کیا بات کر رہے ہو. اچھا جی, آخر میں بات ہوگی فیک نیوز کی. فیک نیوز کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. فیک نیوز کیا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے, اور انٹرنیٹ کی بندش کی بھی ہم بات کریں گے ضرور. دیکھیں نا, وہ دوبارہ سے خبر آ گئی ہے کہ کیبل میں خرابی ہو گئی ہے, سب میری کیبل میں, اور 7 کیبلز میں سے ایک یہ کیبل تھی, اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ویسے تو یہ پتہ کرنا چاہیے یہ کیبل لگا کون رہا ہے. تھوڑے عرصے بعد کیبل خراب, اور یہ ہماری کیبل کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہم نے تو پورے پیسے دیے. ویسے کل میٹنگ میں بھی پتا ہے آپ کو, وہاں کافی زیادہ اس پر ڈسکشن ہوئی ہے. شیزہ فاطمہ صاحبہ نے بھی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہاں فیک نیوز, انہوں نے کہا فیک نیوز چل رئی ہے کہ آئی ٹی اور یہ سارا متاثر ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم اتنے پیسے بلینز آف روپیز کیوں, 300 and something million dollars. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی کہا کہ میں ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے, کس خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور دوسری طرف پھر یہ موقف بھی آیا, آفیشیل ایک موقف سامنے آیا کہ ہم یعنی جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سست نہیں کر سکتے ہیں انٹرنیٹ. جو بتایا جاتا ہے نا, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم سست کریں, یا بند کر سکتے ہیں بالکل, یا پھر اس کو آن کر سکتے ہیں. بٹ ان بوتھ دا کیسز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ایک ہمارا ایک امیج بلڈنگ ہے جو فیک نیوز ہمیں نہیں کرنی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری اکانومی کو کتنا بڑا ڈیفیسٹ یہ لگا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. تو بڑھتے ہیں جی. آج اور مذاکرات کی بھی کہانی تم نے دینی ہے نا بھائی. وہ جو مذاکرات ہوئے ہیں, کل پہلا دور ہوا, دوسرا دور ہوا, اس دور میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اچھا ہم یہ ذرا اس کے چلا رہے ہیں, انٹرنیٹ کی تو بات ہو چکی ہے نا, اب اگر مذاکرات کی فوٹیج ہمارے پاس تو وہ بھی دکھائے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے, اس دوسرے دور میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگلا جو دور ہوگا, یعنی اگلی جو میٹنگ ہوگی, اس میں آفیشلی یعنی باقاعدہ طور پر اپنے مطالبات پاکستان تحریک انصاف رکھے گی. تو کل کیا ہوا آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ تو کل کیا ہوا یہ نہیں پتا ہمیں. مذاکرات ایسے ہی ہوتے ہیں, مذاکرات ایسے ہی ہوتے ہیں, بہت لمبا طویل چلتے ہیں مذاکرات. ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے, مل کے بیٹھتے ہیں, تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی میٹنگ میں نتیجہ نکل آئے. تو اگلی میٹنگ ہوگی جس میں یہ مطالبات رکھے جائیں گے جوڈیشل کمیشن کے, اور بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی, اور جو مزید کیسز ہیں سیاسی لوگوں پر وہ نہیں بنائے جائیں گے, اس پر بھی بات ہوگی. I really hope ہم بات سے آگے بڑھے. یہ تو وہ بات ہوئی زہیب کہ آپ آئے میرے گھر اور میں نے کہا چلے کل ملاقات. لیکن 31 تک انہوں نے کہا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس وقت ہے, اس وقت کے اندر اس کو نتیجہ خیز بنائیں, ان دو مطالبات کو کہ کیا کرنا. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے ہم اس سے آگے بڑھیں. جی بالکل جی. تو یہ ہم نے کچھ سوچا کہ آپ کو بتا دیں, اپڈیٹ کر دیں. اچھا جی, کرکٹ کی بات کرتے ہیں. کرکٹ کی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے, آپ کی اردو. کرکٹ میں جناب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج سے نیو لینڈز میں کھیلا جا رہا ہے, اور پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا. پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ جیسے آپ نے سب نے دیکھا کہ 8 وکٹس پاکستان نے لینی تھی اور جیتتے جیتتے میچ ہار گیا تھا. تو یہ میچ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, سنسنی خیز یہ مقابلہ ہونے والا ہے. پہلا مقابلہ بھی بڑا مزے کا ہوا تھا, اور ٹیسٹ میچز اگر ایسے ہوں تو ٹیسٹ میچز کی پھر ویورشپ بڑھ جائے. اینڈ آئی تھنک زہیب یہ ٹیسٹ میچز سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا آن اے ویری اپ فرنٹ لیول ہم وہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ اچھا کھیل رہا ہے, یہ نہیں کھیل رہا, وہ دیکھنے میں آ جاتا ہے. یہ ٹیسٹ میچ میں ہی آپ کی ساری کرکٹ گیم نظر آتی ہے, آپ کی سکلز ہے, آپ کی ٹیکنیک ہے, آپ کی فٹنس ہے, فیلڈنگ ہے, پیشنس ہے آپ کی, یہ سب ایک ٹیسٹ ہے. یہ تو
जब इस तरह के टेस्ट मैचेस होंगे तो फिर बहुत मजा ये आएगा, जिंदगी लोगों को का भी दोबारा से टेस्ट रिवाइव मैच होगा। है, टेस्ट बिल्कुल। मैच, जिंदगी भी एक टेस्ट मैच है, सही कहा बिल्कुल आपने। तो इस पर हमने बात करनी। गुफ्तगू। अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी तो मैच हो रहा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 84 रन्स बनाए और उसमें 4 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो चुके हैं। विराट कोहली एक बार फिर नाकाम हुए हैं और 20 के अंदर अंदर विराट कोहली आउट हो चुके हैं। सितारे गर्दिश में हैं उनकी। इंडियन फैंस और इंडियन मीडिया बहुत ही सख्त, अच्छा, दे वेरी शदीद तनकीद कर रहा है। वैसे हमने ये देखा है कि हमारी टीम होती है नहीं सही परफॉर्म करती, हम हम फिर भी फॉरगिव एंड फॉरगेट पे चलते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे तो जी वहाँ वो तो क्लाउन छोड़ते बना नहीं है, दिया विराट कोहली हो बेचारे या को। कोई भी हो। तो याया हुसैनी हमारे साथ है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमेशा हमारे इस शो का हिस्सा रहते हैं। याया को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया एक बार फिर। बताइए क्या उम्मीद रखी जाए एक्चुअली तो हमारी टीम से, और उनकी अभी जो मैच हुआ उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम सरवत और अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम अस्सलाम। और आपने उम्मीद रखने की बात की तो अमूमन आपने ये सुना होगा कि जब से आंख खोली है पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बैट हमेशा नाजुक नाजुक दौर से वाकई हम गुजर रहे हैं। सही। ऐसा है। तो आपने पूछा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान न्यूलैंड्स केप टाउन में आज सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच है। पाकिस्तान अपने बका की जंग लड़ेगा। T20 सीरीज 2-0 से हारे हैं। वनडे सीरीज में हमने व्हाइट वॉश किया है। टेस्ट सीरीज में हम एक जीता हुआ मैच जो है वो हमने प्लेट में रखकर, अगर मैं कहूँ कि जनूबी अफ्रीका को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में हमने दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। जिंदगी में सबसे बड़ी शिकस्त सरवत वो होती है जो आप जीत के बहुत करीब पहुंचकर हासिल करते हैं या उससे दो चार होते हैं। तो हमने वो मजा चक्का है सेंचुरियन में, और उम्मीद करते हैं कि न्यूलैंड्स केप टाउन जो कि पहाड़ों में घिरा हुआ एक मैदान है, 25,000 कैपेसिटी का मैदान है। 1889 में यहाँ पर पहला टेस्ट मैच हुआ था। यहाँ पर 60 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। 27 टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका जीता है, 22 में वो हारा है, और 4 मैच पाकिस्तान यहाँ खेला है और चारों में पाकिस्तान हारा है। और 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान विकेटों से हारा है, 1 टेस्ट मैच पाकिस्तान इनिंग्स से हारा है। लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम, पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया, और सही मानों में वो जनाब एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, सही मानों में वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी टीम में 3 तब्दीलियां की हैं। उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेलने वाले कार्बन बॉश को ड्रॉप किया है। उसके अलावा उन्होंने जो है वो डीन पैटरसन को ड्रॉप किया है। मार्फोई को उन्होंने ड्रॉप किया है। वो डेब्यू करा रहे हैं 18 साल के जोहान्सबर्ग के बाएं हाथ के तेज बॉलर है मफाका, जिन्होंने 2 एक रोजा मैच और 5 T20 खेले हैं। इसके बरक्स हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए किसको खिलाना है किसको बिठाना है। कल शान मसूद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिनके लिए ये टेस्ट मैच मेक और ब्रेक वाला मैच है, क्योंकि उनकी कप्तानी पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उन्होंने वही लगी बंदी बातें की, आउट ऑफ द बॉक्स कोई गुफ्तगू नहीं की। हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बहुत जीत के करीब पहुंचकर हार गए। ये शान मसूद के थोड़े मसाइल हैं जिससे हम बिल्कुल भी पहलू सही नहीं। बिल्कुल याया, हाँ, टीम कॉम्बिनेशन की कोई बात करें, इस पे कोई हिकमत अमली? पिछली दफा तो स्पिनर कोई भी नहीं थे, और आपने भी कहा कि विकेट ऐसी थी कि उसमें स्पिनर्स की ये यहाँ की विकेट कैसे खेलती है? फास्ट बॉलर्स के साथ ही हमें जाना चाहिए या एक आधा स्पिनर होना चाहिए? अब आप क्या चाह रहे हैं, मैं सच बोलूं या थोड़ा जरा मजाक? हमारा मसला ये है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। ऐसा ही है। तो बिल्कुल हम मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। और देखिए इस केप टाउन में जिस तरह मैंने आपको बताया कि 60 टेस्ट मैच खेले गए हैं। ये जनूबी अफ्रीका में जितने भी ग्राउंड है ना, ये वो ग्राउंड है जहां पर कहते हैं कि स्पिनर थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि इस मैदान पर जो 60 टेस्ट मैच खेले गए हैं, ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स की हम बात करते हैं तो टॉप 8 बॉलर जो हैं वो फास्ट बॉलर ही हैं। बट जनूबी अफ्रीका ने अपनी लाइनअप में केशव महाराज, जो कि डर्बन से ताल्लुक रखते हैं, 34 उनकी उम्र है, 56 टेस्ट मैचों में 193 उन्होंने आउट कर रखी है, उनको अपनी लाइनअप में शामिल किया है। ऑन द अदर साइड हम अभी तक ये तय कर नहीं पाए कि इस पिच के ऊपर जहां घास नहीं है, फास्ट बॉलर के लिए ये पिच साजगार है, हमने नोमान को खिलाना है या नहीं खिलाना। जो मेरे पास इत्तलात है, आमिर जमाल के हम बगैर जा रहे हैं, मीर हमजा को हम लाइनअप में रख रहे हैं, और स्पिनर का काम हम सलमान अली आगा से लेंगे, जिन्होंने 16 टेस्ट विकेटें अपने नाम कर रखी हैं। ये वो मैदान है जहां पर हमने सेकंड वनडे इंटरनेशनल खेला था जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कुछ दिन पहले, और वहां पर हमने 329 किए थे, 81 रन से जनूबी अफ्रीका आया था। बट ये डिफरेंट बॉल गेम है, वो वनडे था, ये टेस्ट मैच है,
तो मार्को जेनसन और कागिसो रबाडा जिन्होंने 51 रन की पार्टनरशिप की थी पहले टेस्ट मैच में अपनी टीम लेकिन को या ये बताएं कि आपके सलमान अली आगा के साथ देखिए, ये तो एक फिलर के तौर पे काम करते हैं ना इस तरह के बॉलर्स। हमें सबको पता है कि अगर विकेट आ गई तो आ गई, ठीक है, तो हम क्यों नहीं जाते एक ऐसे स्पिनर को लेकर टीम में कि जो बाकायदा स्पिन बॉलिंग में जिसकी महारत हो ना, इस तरह के रेलू कट्टे या फिर जो भी कहा जाए, आप इसको ऑलराउंडर कह लें, तो ये तो ठीक है, काम चला देते हैं, बस काम चलाने वाले होते हैं। आज आपने तय किया भाई जोएब कि आपने खे लगाने हैं। जोएब आपको अच्छी तरीके से पता है जुगाड़ पे चल रहे हैं हम। जुगाड़ बनाने में, जुगाड़ निकालने में हम लोग का कोई सानी नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि क्यों हो जाएगा। लेकिन क्यों मतलब जुगाड़ किस बात का लगाना है भाई, किस बात का लगाना है? देखिए बिल्कुल आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन हम आधा तीतर आधा बटेर के ऊपर चलते हैं। हम जो है वो हमको सोचना चाहिए और हार से डरना नहीं चाहिए। आप जनूबी अफ्रीका को देखिए ना, उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता और वो 3 चेंजेस उन्होंने टीम में कर दी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम पहला टेस्ट मैच जीत जाते तो हम तो भाई विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते। अब आप देखिए कि हमने शाहीन आफरीदी को जो है वो रोटेशन पॉलिसी के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए टीम में शामिल नहीं किया और वो जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। तो अब आप खुद बता दीजिए मुझे कि हम कहाँ खड़े हैं, वहां एग्जॉस्ट हो रहे हैं, यानी वहां एग्जॉस्ट कर रहे हैं हम। बांग्लादेश में अगर वो इंजर्ड, अल्लाह ना करे इंजर्ड हो जाते तो आपका आईसीसी का इवेंट भी गया, यानी ये आपकी मैनेजमेंट है। सीख नहीं रहे ना। अभी आप देखिए, अभी आप इंडिया के टेस्ट मैच की बात कर रहे थे, इंडिया की हालत भी बड़ी नाजुक है, पतली है। उनके जो है वो 94 पे 4 आउट हो गए। उनके ड्रेसिंग रूम में जब वो चौथा टेस्ट मैच हारे तो उनके जो कोच हैं गौतम गंभीर, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने खिलाड़ियों की ऐसी तैसी कर दी, नाम किसी का नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई कोई होगा सीनियर अपने घर पे होगा। और अब वहां पर सूरत हाल ये है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा जो सिटिंग कैप्टन थे इस दौरे के ऊपर, वो बाहर बैठ गए, आज नहीं खेल रहे वो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई सिटिंग कैप्टन जो है वो बाहर बैठा है। लेकिन अब आप देखिए कि पड़ोसी मुल्क में जो है वो बहुत हिद्दत है, बहुत शिद्दत है। बस बुमराह के कंधों पे इतना बोझ डाल देना इन्होंने कि बुमराह बेचारा किसी दिन ये कहेगा यार मुझे माफ कर दो, मैंने क्रिकेट क्यों खेलना शुरू किया। ये यदि सरवत देखें, आप जो आप इंडिया की बात कर रही थी, तो इंडिया और पाकिस्तान का कुछ कमोबेश एक ही जैसा हाल है। बिल्कुल। याया से इस बार याया बताइए ना, हमें क्या कंपैरिजन नजर आता है? वेल आजकल तो दोनों ही टीम्स एक जैसी हालात में लग रही है। नहीं सरवत, मैं आपसे कहूंगा, आप को हम देखते रहते हैं, आपने बड़ा अच्छा ड्रामा में काम किया है। आप एक ड्रामा जो है बनाइए खेल के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर स्टोरी मैं लिखूंगा और बहुत कुछ है कहने और लिखने के लिए। एक्टिंग मैं करूंगा। कैप्टन ये होंगे, कैप्टन जोएब होंगे। मैं तो जोएब को कहता हूँ, जोएब मुझे उस दिन बता रहे थे कि सरवत उनको कन्विंस कर रही है कि आपको ड्रामा में काम करना चाहिए। हम तो कहते रहते हैं कि यार आपको ड्रामा में काम करना चाहिए। देखिए सब कॉन्टिनेंट का मसला रहा है सरवत के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर निकलती हैं, यहाँ पर छोटी सी बात के ऊपर नाराज हो जाते हैं, यहाँ पर हम वो सुनते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, यहाँ पर एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम सालों खेलते रहते हैं। तो अब आपके सामने ये चीजें हैं, जब तक आप राइट। अच्छा याया, बस चांसेस क्या है पाकिस्तान के? चांसेस क्या है? चांसेस बताए ना, क्या जीत के अगर हम देखें, वैसे तो अच्छा खेल रहे पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि हम बुरा खेल रहे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम अपनी टीम को हमेशा दिल दिमाग से जो है वो बैक करते हैं। और दिल तो कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, दिमाग कह रहा है कि सोच लो। याया हुसैनी, थैंक यू सो मच, आपने अपना तज्जिया पेश किया। हिस्सा बने एक बार फिर, भाई बड़ा मजा आता है। देखिए तज्जिया भी साथ साथ होता है और हंसी मजाक भी अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है हमारी आई थिंक पाकिस्तानियों की, कि हार भी गए तो दिल पे नहीं लिया। हार के इतना आदी हो गए ना। सही बात है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, इट्स अ जैम पैक्ड शो, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार साहब हमारे साथ होंगे, तो एक ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन। अब सिंध की सूरत हाल की हम बात करते हैं। सिंध में गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें हमने बात करनी है। फिर शहरों में क्या सूरत हाल है, जैसे कराची की हम बात करें, या फिर कच्चे के इलाके में क्या सूरत हाल है, और सेफ सिटी कैमरों का भी मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चोरी के वाक़यात हो रहे हैं, स्नैचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। तो इन सारे मामलों पर हमने सोचा कि अपडेट लेते हैं कि सिंध की इंतज़ामिया क्या कर रही है। तो हमारे साथ वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर।
سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کراچی دھرنوں میں سرکاری اور نجی املاک کو کیا نقصان پہنچا اور نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کیا کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ اس میں جو سرکاری املاک ہیں یا جو ہمارے پولیس کے جوان زخمی ہوئے ہیں، اس سلسلے میں 3 FIRیں کٹی ہیں، اور جس میں ایک ملیر میں FIR کٹی ہے، ایک بغدادی میں کٹی ہوئی ہے، اور ایک کسی PS میں کٹی ہے۔ 3 PS میں 3 FIRیں کٹی ہیں، اور ان میں تقریباً جو 300 نامعلوم افراد کے خلاف FIRیں ہیں، اور کچھ جو ہیں FIRیں بائی نیم ہیں، اور اس میں تقریباً 7 موٹر سائیکلز جو ہیں وہ برن ہوئی ہیں ان واقعات میں، جس میں ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ ہمارے پولیس کانسٹیبل کی، ٹریفک کے پولیس کانسٹیبل ہیں، ان کی برن کی ہے بلوے میں۔ تو یہ سب FIR جو ہیں 324 میں بھی FIR کٹی ہوئی ہیں، اور ATC کے سیکشنز بھی لگائے گئے ہیں۔ اچھا ضیاء صاحب، کراچی میں ایک برس میں اگر ہم بات کریں تو چوری، ڈکیتی، قتل اور لوٹ مار سمیت دیگر جو سنگین جرائم کی وارداتیں 72,000 سے زائد رپورٹ ہوئی ہیں وارداتیں، جبکہ ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے 113 شہریوں کی جان لی ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ، یہ کراچی پولیس کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا مزید اور کرنے کی ضرورت ہے کراچی پولیس کو؟ دیکھیں، جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی ہے اس سال، تو میں نے اوتھ اٹھایا تھا مارچ کے ماہ میں، اور اس میں جب میں نے ایز اے ہوم منسٹر چارج لیا تو اس ٹائم پر حالات ایسے تھے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کیئر ٹیکر پیریڈ کی وجہ سے کافی خراب ہوا تھا، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی پریارٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ الیکشنز ان کی فرسٹ پریارٹی ہوتی ہے، اور جب مستقل گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی پریارٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اور اسی کو لے کر ہم نے، میری جو ٹیم ہے IGP سندھ ہے، یا ہمارے ایڈیشنل IG کراچی، یا ہماری رینجرز کی جو ونگز ہیں مختلف، اس کے حوالے سے ہم نے کافی کام کیا، اور الحمدللہ ہمیں کافی خاطر خواہ اس کے نتائج بھی ملے، اور میں ایز سچ اب تک جو کرائم ریٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں کافی مطمئن ہوں کہ کراچی کے حالات پہلے سے مختلف ہیں۔ یقیناً ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ناحق 100 سے زیادہ جو مواد ہوئی ہیں مختلف معاملات میں، مختلف جو واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، اس کا ہمیں افسوس ہے، اور امید یہی میں کرتا ہوں کہ اگلے سال پولیس کی کارکردگی اس سے بہتر ہوگی۔ میں تو اپریشیٹ کروں گا کہ ہماری جو پولیس ہے، خصوصاً کراچی پولیس، وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی طرف توجہ دے رہی ہے، اور یقیناً یہ بھی میں کہوں گا کہ جو ریٹنگ ہوتی ہے، کرائم ریٹنگ، اس میں تقریباً 70 درجے جو ہماری کراچی کی ریٹنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ دوسرے ممالک کے جو بھی دارالخلافات ہیں یا بڑے بڑے میٹرو اور کوسمو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہماری جو ریٹنگ ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے، اور یقیناً کراچی کے شہری بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، جس میں ٹریڈر حضرات ہیں، موبائل ایسوسیشنز ہیں، یا ہمارے اور جو شہری ہمارے ایسوسیشنز کافی مختلف ہیں، وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہی ہیں، اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ آگے اور بہتری کی طرف ہم جائیں گے۔ ضیاء صاحب یہ بھی بتائیے، کچے کے علاقوں میں سال 2024 میں 559 پولیس مقابلوں میں 73 ڈاکو ہلاک ہوئے اور 19 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ کچے کے علاقوں کو 3 حکومتیں مل کر کلیئر کیوں نہیں کرتی؟ ہم ہر وقت یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کانسٹنٹ ٹرموائل رہتا ہے۔ دیکھیں،
इसमें जो मैं समझ रहा हूँ, आप 3 हुकूमतों को ऐसे कह रहे हैं कि सिंध, पंजाब हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत, जी। जो मैं समझ रहा हूँ उसमें ट्राई बॉर्डर बिल्कुल है, लेकिन कच्चे का एक डायनामिक्स अपने हैं। और जब मैं फिर वही बात करूँगा कि जब एज ए होम मिनिस्टर मैंने चार्ज ली तो काफ़ी यहाँ पर जो कच्चे का एरिया है, हमारा डिस्ट्रिक्ट घोटकी लगता है, उसमें सखर डिस्ट्रिक्ट लगता है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट लगता है, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, मोस्टली कच्चे के एरिया जो वल्नरेबल थे इस टाइम पर, वो यही डिस्ट्रिक्ट थे। और वहाँ पर रेंजर्स के साथ मिलकर हमारे लोगों ने, जो हमारी पुलिस के जवान हैं, रेंजर्स के जवान हैं, उन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया और उनको खातिर ख्वाह कामयाबियाँ भी हुई और उसमें काफ़ी डाकू मारे भी गए। और इसमें मैं तो ये कहूँगा कि जो 903 इनकाउंटर्स अभी तक वहाँ पर कच्चा एरिया में हुए हैं, जो मेरे पास तफसील है, उसमें 103 डाकुओं को मारा गया है इन पिछले साल जो हुआ है। और उसमें मगवी भी काफ़ी, उसमें से हमने रिकवर किए 260 मगवी जो हैं वो रिकवर हुए हैं, जो कि हनी ट्रैपिंग में भी थे और फोर्स ऑब्डक्शन भी थी उसमें। तो वहाँ पर जब शुरू में तो ये हालात थे कि सीपेक का रोड पर भी कानवाई चलानी पड़ रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब सीपेक है या ओल्ड नेशनल हाईवे है, सखर टू ओबावड़ो, या हमारा शिकारपुर रोड है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पर हमें कोई कानवाई, पुलिस कानवाई या देनी नहीं पड़ रही है और लोग फ्रीली वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पर। रही बात यकीनन कश्मीर और शिकारपुर का, जो हमारा इंडस हाईवे है, वहाँ पर ज़रूर थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं और उसमें मुझे उम्मीद है कि हम उसमें भी काफ़ी अब बेहतरी लाएंगे। और हम टेक्नोलॉजी का भी वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे अपने अफसरान पर काफ़ी यकीन है कि वो इन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बहुत बात होती है, सिंध हुकूमत इस पर काम कर ही रही है और तकरीबन 34 अरब से ज़ायद की इस पर लागत आ रही है। बताया जा रहा है कि 12,000 CCTV कैमरे लगेंगे, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स भी इसमें शामिल होंगी। इसकी तफसीलात आप बताएंगे और ये कब तक मुकम्मल होगा, फाल होगा ये प्रोजेक्ट? देखिए, सेफ सिटी के मुख्तलिफ मराहल हैं। फ़ेज़ 1 है, फिर फ़ेज़ 2 है, फिर फ़ेज़ 3 है। और इस टाइम पर जो फ़ेज़ 1 शुरू हो चुका है उसमें तकरीबन 200 के करीब पोल्स लग चुके हैं, जो आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें हमारा जो पहला फ़ेज़ में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एयरपोर्ट कॉरिडोर से शुरू हुआ है और एयरपोर्ट कॉरिडोर से वो आप समझ लें कि शाहराह फैसल उसमें शामिल है, फिर हमारा रेड जोन शामिल है, उसके अलावा हमारा क्लिफ्टन का एरिया जो 3 तलवार और 2 तलवार और अप टू द पाक टावर तक जो जाता है समंदर की तरफ, हमारा अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ जो रोड है, ये एरियाज़ हैं जिसमें अब तकरीबन कोई 60-65 कैमरा और पोल्स लगने हैं। जिसके बाद अब तक कैमरा जो लगे हैं वो तकरीबन इन पोलों में जो हैं 175 पोल्स पर कैमरास भी लग चुके हैं और अभी टेस्टिंग ट्रांसमिशंस हम चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी वर्किंग को, कि वो कैमरास कैसे चल रहे हैं। और जो भी उसमें हिंड्रेंसेस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, मुख्तलिफ जैसे कि KMC के परमिशंस होती हैं, कंटोनमेंट की परमिशंस होती हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह NOCs आ चुकी हैं। और हम कल भी हमने सेफ सिटी की एक मीटिंग की थी चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में, और अब एक टारगेट हमने फिक्स किया है, सेफ सिटी अथॉरिटीज़ को कहा है कि भाई आप जैसे 1 फरवरी तक हमें कम से कम जो एयरपोर्ट कॉरिडोर है या क्लिफ्टन एरिया है उसमें
ہمیں جو بھی آپ کی ورکنگ ہے وہ اسٹارٹ کر کے دیں. اور مجھے امید یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ 1 فروری تک آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اور اس میں سے ریزلٹس آنا شروع ہو چکے ہوں گے. اور میں اس میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہم نے یہاں پر موویبل وہیکلس بھی رکھی ہیں جو کہ فلی ایکوپڈ ہیں. وہ بھی ہم شارع فیصل پر ابھی چلوائیں گے. کچھ ہم نے یہ جو ہمارا ایکسپو ہوا تھا، ایکسپو میں ہم نے ان کو یوزیج کیا تھا، لیکن اب پراپرلی اس کو یوز کر رہے ہیں. رائٹ. ضیاء صاحب یہ بھی بتائیے، اسلحے کی نمائش کی روک تھام کے حوالے سے ایک کیمپین بھی چلائی گئی تھی اور جگہ جگہ اس کی تشہیر بھی ہوئی تھی، جو کہ ایک انتہائی مثبت قدم تھا. اس کے کیا نتائج نکلے اور کیا اس حوالے سے کوئی گرفتاریاں اور اسلحہ ضبط کیا گیا؟ اسلحے کی نمائش کے حوالے سے کراچی میں کافی ہمیں کرٹیسزم کا فیس کرنا پڑ رہا تھا کراچی کے شہریوں کی طرف سے کہ کراچی میں امن و امان کے لیے ایک تو ٹینٹڈ گلاسز اور اسلحے کی نمائش جو ہے وہ ایک بڑا پرابلم تھا. اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو لوگ جو اسلحہ لے کر چل رہے ہیں آیا یہ کرمنلز ہیں یا پروٹیکشن کے لیے ہیں. تو ایک وہ پیرامیٹر ہوتا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے اگر کسی کے پاس ہے تو مختلف ہماری ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو کہ ان کو پروٹیکشن کے لیے لوگ دے رہے ہوتے ہیں. ہماری کافی جو ایجنسیز ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ کیا کہ پھر پراپرلی جو ہمارے ایس ایس پی صاحبان ہیں ان کو ڈائریکشن دی گئی. اور اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں کافی اسلحہ بھی ریکور ہوا ہے، جس میں 2 LMGs ہیں، 14 G3s ہیں اور 180 SMGs بھی ان سے ریکوری ہوئی ہے. 644 رائفل شاٹ گنز ہیں اور پسٹلز 9687 جو ہیں وہ ریکوری ہوئی ہے. 144 ہم نے امپوز کیا ہے اسلحے کی نمائش پر اور ٹنٹڈ گلاسز پر. تو ٹنٹڈ گلاسز پر بھی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن میں ابھی بھی اس چیز سے مطمئن نہیں ہوں کہ میری ڈائریکشنز ہیں کہ ٹنٹڈ گلاسز اور اسلحے کی نمائش پر جو کام ہونا چاہیے وہ ابھی تک اس لیول تک نہیں ہوا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے ہم میٹنگز کر کے اپنے آفیسرز کو اس میں سینسیٹائز کریں گے کہ یہ اس چیز پر کام کریں. اچھا ضیاء صاحب، ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس میں جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پولیس اہلکار بھی ملوث پائے جاتے ہیں ان جرائم کی وارداتوں میں، اور اگر محافظ ہی ساتھ دیں گے مجرمان کا کہیں کچھ واقعات میں تو پھر اس کی روک تھام ذرا مشکل ہو جائے گی. ہوم منسٹری اس بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہے اور ان اہلکاروں کے خلاف کیا کارروائیاں کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں یقیناً ہر جگہ پر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں اور اس پر کافی ہمارا یہ فوکس ہے کہ جو بھی اس قسم کے وہ افسران ہیں اس میں پھر آئی جی صاحب نے ایک بنایا ہوا ہے بی کمپنی ان کو بنائی ہے کہ وہ پھر ہم اس کو بی کمپنی کا مینس یہ ہے کہ ان کو یا سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوتی ہے ٹل جو انکوائری ہو، سسپینشنز رہتی ہیں اور وہ بی کمپنی میں رہتے ہیں تاکہ ان کو وہ کوئی اور کام نہ کر سکیں. نہیں تو ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ سسپینڈ کر دیا، وہ پھر بھی اسی لائن میں رہ رہے ہوتے تھے، اس ڈسٹرکٹ میں رہ رہے ہوتے تھے. تو ہمارا جو گارڈن ہیڈ کوارٹر ہے وہ وہاں رپورٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پر وہ ان کے خلاف پراپر کارروائی ہوتی ہے. اب بھی تقریباً 103 پولیس افسران ایسے ہیں جن کے خلاف مختلف ہم نے اے ایس پیز کو، ڈی ایس پیز کو اور ایس پی صاحبان کو ہم نے انکوائریاں ان کی دی ہوئی ہیں. اس پر ان کی انکوائریاں انیشیٹ ہوئی ہیں. جو بھی مختلف کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس میں ہم ان پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کی ریزلٹس آئیں گے ہم ان کو
कार्रवाइयाँ करें। कार्रवाइयाँ करेंगे। ज़िया साहब ये भी बताइए, खबरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि पुलिस के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली की जा रही है और आईजी सिंध की भी तब्दीली की भी खबरें हम सुन रहे हैं, ज़ेर गर्दिश है। आप तस्दीक या तरदीक करेंगे इसकी? बुनियादी देखें, एक तो एक्ट है हमारे पास, तो वो तो आपको पता है कि माजी में काफ़ी उस पर डिस्कशन होती रही है और यकीनन हर चीज़ की बेहतरी की ज़रूरत होती है हर चीज़ में, और टाइम टू टाइम उसमें चेंजिंग्स होती रहती हैं। अभी रूल्स हम बना रहे हैं, पुलिस रूल्स जो हैं वो वर्किंग हो रही है उन पर, क्योंकि पुलिस रूल्स 1934 के बने हुए हैं, जो कि बिफोर पाकिस्तान रिपार्टीशन से पहले के बने हुए हैं, और उसमें अब जदीद तकाज़ों के मुताबिक उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उस पर वर्कआउट हो रहा है। बाकी अफसरान तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई भी ऐसी की कोई भी बात ये तो रिफॉर्म्स ला रहे हैं। एक और सवाल ये कि बहुत बड़ा मसला है कि पुलिस, नफरी और ह्यूमन रिसोर्स की हमेशा बात होती है। जब भी जराइम बढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि हमारे पास नफरी कम है, तो इस सिलसिले में क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने का, लोगों को मजीद पुलिस एहलकारों की भर्तियों का कोई प्लान है आपके पास, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? नफरी यकीनन, जो आप अगर कराची देखें तो कॉस्मो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसकी जो इन्फ्लक्स है, यहाँ पर हर जगह से मुल्क के लोग आ रहे होते हैं, और यकीनन कराची के अलावा हमें जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिंध है उसके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी ज़रूरत है। जैसे कच्चे का इलाके हैं, वहाँ पर भी हमें पुलिस की रिसोर्स की ज़रूरत होती है, और तो उस पर अभी हम अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये तकरीबन 10,000 के करीब पोस्टें हैं जो फिलअप होंगी। उसके अलावा भी अब सेकंड फेज़ में हम दोबारा एडवर्टाइजमेंट देंगे और उसमें यकीनन 20,000 के करीब और भी हमारे जो हैं पुलिस कांस्टेबल्स भर्ती करेंगे। उसके अलावा अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑफिसर्स जो कि ASI से सब इंस्पेक्टर तक हों, वो उनकी कमी काफ़ी महसूस की गई है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह फिलअप करेंगे थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। और अब एक और भी हमारे पास कंपोनेंट है कि हम जो एक सर्विस वैन है उनको भी भर्ती कर रहे हैं, ताकि हम अपर सिंध के हमारे जो एरियाज़ हैं, जैसे ये आपने पहले सवाल किया था कि कच्चे के एरिया में हम बेहतरी चाहते हैं, वहाँ पर ये हम डिप्लॉयमेंट करेंगे अपॉइंटमेंट करके। और अभी आप देख रहे होंगे कि कच्चे के एरिया में बहुत बड़ा ब्रिज भी बन रहा है, जो कि कंदकोट और घोट की ब्रिज है, उस पर भी काम चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि अगर वहाँ के हालात ठीक नहीं होते तो ये ब्रिज नहीं चल रहा होता। काफ़ी अरसे से इसका काम बंद था और हमने वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और मुआशी हालात भी मुझे उम्मीद है कि अपर सिंध में बेहतर। वज़ीर दाखिला सिंध, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की जर्नी की तरफ। वैसे आप मुझे बताएं कि ये पहले तो जो जाएंगे वहाँ पे, ये आप ड्राई फ्रूट्स खाती रहती हैं और मुझे नहीं खिलाती आप ड्राई नहीं है ना ड्राई फ्रूट्स उन्हीं को खिलाते हैं जो ड्राई हो। अच्छा जी, आज जी हमें दुबई से ज्वाइन कर रही है निब्रास सुहेल, एंकर पर्सन है, ब्रॉडकास्टर है, तो मजा आएगा इनसे बात करने के लिए। निब्रास, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for inviting me on your channel. Thank you so much. मुझे तो लगता है
इसके आगे से आप टेक ओवर कर सकती हैं हमारा, टेक ओवर कर सकती हैं, और आज का ब्रेक भी शायद हम आपसे आपसे कह ही दें कि दिलवाए। ब्रेक ले लें। क्या हाल है अच्छा। दुबई में, कैसा चल रहा है निब्रास? क्या माहौल देखती है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिहाज से? क्या और क्या आप तहरीर लोग कर की- रही हैं आजकल? हाँ ये भी अच्छा, अब बहुत से सवाल आपने कर दिए। दुबई इज एक डूइंग साथ, फैंटास्टिक एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको पता है यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं बहुत मोहब्बत के साथ, और सब बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी नहीं है उतनी जितनी पाकिस्तान में, बिकॉज मैं अभी 25 को वापस आई हूँ। ठंड बहुत थी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ वैसी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह दे आर एक्सेलिंग इन देयर ओन फील्ड्स। बहुत से लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। एज फार एज माई वर्क इज कंसर्न, मेरी अभी रिसेंटली नवंबर 13 को दूसरी बुक लॉन्च हुई। अरे वाह। पहले 2022 में मेरी किताब लॉन्च हुई थी परवाज के नाम से, और उसके बाद काफ़ी उस पर गुफ्तगू भी रही, और पाकिस्तान में जब गई तो चैनल्स पर उस हवाले से काफ़ी डिटेल्ड बातचीत भी होती रही। और उसके बाद अभी वो दूसरी शाहीनों book की है परवाज के बारे में थी? परवाज नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो ट्रांसलेशन वर्क था ओल्गा तकारचुक, जिनको 2018 में नोबेल प्राइज मिला। Absolutely. उनकी किताब, उनके नॉवल फ्लाइट्स की ट्रांसलेशन थी, जिसको मैंने परवाज के परवाज, नाम से ठीक, किया। और बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक काम था जो किया, और लोगों ने बड़ा ओके एंजॉय किया उसको। निब्राज, हम आपसे 1 मिनट की वक्फा लेंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज, उसकी तरफ चलते हैं, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी एक ब्रेक रहेगी। लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, ये डिस्कशन जारी है। हाँ हाँ, नई बुक का पूछ लो, वो हम लगा देंगे उसमें अगर। जी निब्राज, सॉरी आप कह रही थी? अपनी बुक के जी, बारे में are you बताइए, back? बारे Are you में बताइए। back? जी जी, वी आर बैक। ओके, तो दूसरी बुक परसेप्शनिज्म, जो कि पहली किताब इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन थी, और अभी ये दूसरी किताब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, जो कि डॉक्टर फरहत अब्बास शाह साहब की थ्योरी है क्रिटिकल एनालिसिस की, Right. लिटरेरी वर्क्स के क्रिटिकल एनालिसिस की। और उसको हमने इसलिए ट्रांसलेट किया कि हम उसको वेस्ट में आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि देयर इज वन क्रिटिकल एनालिसिस थ्योरी दैट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, राइट। और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है। तो इस लिहाज से ये किताब अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका लॉन्च भी शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में हुआ इसी साल। तो ये 2 बड़े काम का क्रेडिट निब्राज, कैसे आप कैसे चूज करती हैं कि भाई मैं इस बुक पे काम करूंगी, दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव आउट? अच्छा, चीजें ना प्लानिंग से नहीं होती, एटलीस्ट मैं ऐसे तो ये है। कह सकती हूँ कि कभी कोई वक्त होता है, और जैसा कि ओल्गा अपनी किताब में लिखती है कि देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू साइन इन समवेयर। ऐसे तो ही है। बस उसके बाद आपकी गुड लक शुरू हो जाती है। आपको नहीं पता होता, अगर वो वक्त और मकाम हम आहंग हो जाएं, बिल्कुल और आप ऐसे। उसी वक्त साइन इन करें सिचुएशन में, तो फिर सक्सेस आपको वेलकम करती है। ये उसकी थ्योरी है। क्या बात। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि किसी ने मुझे बताया कि ये नोबेल लॉरिएट है, तो इनकी पढ़े, तो मैं उसको पढ़ती चली गई। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही हटके, बहुत उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है उनका दूसरे पर्सपेक्टिव है, राइटर्स। बिल्कुल। तो मैंने कुछ हिस्सा उसका ट्रांसलेट किया, एक ग्रुप में ड्रॉप किया आलमी अदब के उर्दू तराजम, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा कि आपका लहजा बिल्कुल ओल्गा का लहजा है उर्दू में, अगर हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखें तो। राइट। तो मेरी हौसला अफजाई हुई, मैंने फिर उस पर काम शुरू कर दिया, और विद इन 2 years मैं उसको कर पाई, और वो पब्लिश भी हो गई। तो इस तरह से जिसे कहना चाहिए कि आपकी हौसला अफजाई हुई। Right. और वहाँ हल्का फिर ये- अहबाब लिटरेरी एक्टिविटीज क्या क्या हाँ। होती है, मुशायरे वगैरह होते हैं, यानी ऐसा कल्चर वहाँ पर है, या फिर लोग अपने कामों में बिजी बहुत रहते हैं? अच्छा। जी जी। जी, यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है इस लिहाज से, यहाँ काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन इस ज़िम्न में एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं चूँकि बेसिकली तो एक एजुकेशनिस्ट हूँ, और जो चीज़ इस बार मैं पाकिस्तान गई और मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की कि जीसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मैं चली गई, तो मैंने देखा कि नौजवान उर्दू अदब से बहुत क्लोज हैं पाकिस्तान में अभी भी। मेरा यहाँ पर रहते हुए ये कॉन्सेप्ट परसेप्शन बन रहा था कि शायद नौजवान इंटरेस्ट नहीं ले रहे उर्दू अदब में, शायरी में, या उर्दू की तकनीकात में। लेकिन मुझे ऐसा देखने को मिला कि नौजवान बहुत एक्टिव हैं। तो ये कल्चर यहाँ नहीं है, नौजवानों में नहीं है। अलबत्ता हमारी एज ग्रुप के लोग जो हैं, मुशायरे भी हो रहे हैं, अदबी दूसरे प्रोग्राम्स भी हो रहे ये हैं। बिल्कुल आपकी एक एफर्ट है कि आप नौजवानों तक भी इस कल्चर को फरोग दें ताकि वो भी इस तरफ आए। बहुत शुक्रिया निब्राज सुहेल, आपने हमें
दुबई से। और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं नई बुक के लिए भी। बिल्कुल। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, राइज एंड शाइन में बहुत कुछ अभी है आपको बताने के लिए और सुनाने दिखाने के लिए। दिखाने के लिए ऐसा ही है। जी नाजरीन, हमारी जिब ऐसे आ रही है कि हम इस टेबल के अंदर से निकल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, मैजिक ना हो जाए एकदम जी नाजरीन, महकमा मौसमियात ने कराची में 4 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। और शहर में इस वक्त मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज और कल सर्दी की शिद्दत में मामूली सी कमी की पेशगोई की है। ताहम 4 जनवरी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का भी इम्कान है, जिस दौरान शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर भी जा सकता है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम के दाखिल होने का भी इम्कान जाहिर किया गया और इसके पेश नज़र 4 जनवरी तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है। और बलूचिस्तान से निकलने वाली सर्द हवाओं की जद में कराची भी आ सकता है। तो ये है, आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। इतना हंसते हुए क्यों आप बात करती हैं? मौसम की बात बता रहे हैं आप हंस रही हैं। देखिए, मौसम जब अच्छा होगा तो दिल का मौसम भी अच्छा होगा, अच्छा होगा, ज़हनी मौसम भी अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देखे ना, मेरे स्वेटर से लग नहीं रहा कि कराची में बर्फ पड़ी। कराची में कराची में बर्फ मैंने पड़ी। यही कहा था कि हम लोग गर्म कपड़े ले लेते हैं और फिर बस पहन लेते हैं। हम कहते हैं अब क्योंकि हाँ, सर्दी हो ना हो, आनी नहीं अब है, क्या करें, वार्डरोब का तो इस्तेमाल होना खरीदा है भाई। तो जी कराची से कराची शुरुआत करते, 24 सेंटीग्रेड दिन में रिकॉर्ड किया गया है और 17 सेंटीग्रेड रात में, रात के औकात, और सनी है कराची, तो हम देख रहे हैं बहुत सनी। अच्छा, थोड़ा सनी और कुछ कम हुआ है टेम्परेचर, 17 डिग्री। 17 इज नॉट गुड। हाँ, ऐसी है। हैदराबाद 23 डिग्रीज है दोपहर के औकात में और 13 डिग्रीज है रात के वक्त में, और यहाँ पर भी बादल नहीं है। तो हैदराबाद में यह है सर्दी का अहवाल। क्वेटा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और जहां -1 और 3 तक पहुंच गया था, वहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में रिकॉर्ड 0 डिग्री पे है। 0 भी बहुत है। हाँ, ये तो है। मुल्तान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोपहर के वक्त में मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज जाएगा, गर्मी यानी 20 डिग्री तक हो सकती है। अब इसको गर्मी का है या सर्दी का है, वहाँ के लोग यूज्ड टू हैं इसके। 5 डिग्री है रात के औकात में डिप करेगा टेम्परेचर, और धूप ही है यहाँ पर, सूरज निकला हुआ। जी, फैसलाबाद की तरफ रुख करें तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है और रात की औकात में 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट्स वेरी सनी। लाहौर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के वक्त में, और यहाँ भी बादल नहीं है। तो ये थ्रू आउट पंजाब में तुमने देखा कि बादलों का कोई राज नहीं है। इस्लामाबाद में कुछ ओवरऑल आई थिंक थोड़ी गर्मी हो गई है, सर्दी कम हो गई है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड कैपिटल सिटी में है और 9 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त है, पार्शली क्लाउडी एंड पार्शली सनी। जी, पेशावर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बादल भी हैं, सूरज भी है, आग पे चोली जारी है। 6 डिग्रीज है रात के वक्त में पेशावर का दर्जा है हरारत। पेशावर से आगे अगर हम बढ़ें तो मुजफ्फराबाद में 12 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के वक्त है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड रात की औकात में है। सनी एंड क्लाउडी दोनों है। स्कर्दू 6 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर में और 0 पे है रात में, और बड़े काले बादल हैं, बारिश भी हो रही है। जी, तो ये सोचा ले। ड्राई फ्रूट्स आप खा रही हैं जी, बिल्कुल। और आप चिलगोजे नहीं ला रही हैं। देखिए ये राइमिंग हो गई। ड्राई फ्रूट्स आप खा रही हैं लेकिन चिलगोजे नहीं ला रही हैं। क्या बात है। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि जी क्या हालात हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या मौसम रहेगा। बताइए कि क्या कहता है मौसम, और क्या आप इस पोजीशन में हैं कि चिलगोजे खरीद सकें? चिलगोजों का तो खाली नाम ही सुन सकते हैं। खरीदने तो बस की बात नहीं। हम यहाँ मेरे से पास डिलीवर पता है कराएंगे 10-15 आ गए थे चिलगोजे, 10-15। तो मैं अपने आप को अमीर आदमी समझ रहा था। मैंने कहा खाऊं इनको, रखूं, लोगों को दिखाऊं, क्या करूं। फ्रेम करा ले, फ्रेम। जी सरदार साहब, क्या आने वाला मौसम बता रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मौसम आपने खुद जैसे जिक्र किया, कल से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुमाली इलाकों में पाकिस्तान के जारी है। कालाम में अच्छी बर्फबारी पड़ चुकी है, कोई 3 फुट से ऊपर बर्फ हो चुकी है। इसी तरह से दूसरे मालम जब्बा स्टेशन है, उधर चतराल में हुई है, दीर की तरफ भी है पहाड़ों पर, और बलूचिस्तान में भी बारिश हुई है, लेकिन फिलहाल बर्फबारी की रिपोर्ट नहीं आई। अलबत्ता शुमाली इलाके जो हैं, गिलगित स्कर्दू हो गया, कश्मीर वादी कश्मीर हो गई, नीलम वैली,
تو ان تمام ایریاز میں پہاڑوں پر ہلکی، کہیں پر درمیانی، اور کسی جیسے کلام وغیرہ کا میں نے بتایا کہ وہاں ہیوی سنو فال. تو یہ سلسلہ اگلے 2 سے 3 دن چلے گا وہاں پر. 6 جنوری تک ہے یہ سلسلہ بارشوں کا بھی اور برف باری کا بھی. پورا کے پی، خاص کر شمالی کے پی جو ہے پہاڑی علاقے، وہ سارے اس میں آئیں گے لپیٹ میں. اور جی سردار صاحب یہ بھی بتائیے گا، بابو سر ٹاپ ہو گیا، کمان جی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سردی کی جو دوسری لہر ہے یہ کتنے عرصے تک چلے گی، کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں جنوری کے اینڈ تک تو چلے گی، اس لیے کہ آپ کو مطلب وہ علم ہوگا کہ تو روایتی طور پہ دسمبر سے زیادہ سرد مہینہ ہوتا ہے ہر ایک اسٹیشن پر، جس کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ایوریج ٹیمپریچر سے پتہ چلتا ہے کہ جنوری کولڈر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دسمبر. تو اس کا مطلب جنوری کے اینڈ تک تو چلے گا سلسلہ کم از کم سردی کا. جو شمالی علاقے ہیں آپ کے، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ فروری کے اینڈ تک سردی کا سلسلہ. اور کوئٹہ کی سرد ہوائیں چل رہی ہیں، کوئٹہ کی سرد ہوائیں چل رہی ہیں، تو کراچی کا موسم اس پہ کیسے متاثر ہوگا اور کتنی سردی بڑھے گی یہاں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ کل سے یہ جو ویو ہے نا بلوچستان میں اس وقت موجود ہے، ویسٹرلی ویو جو انٹر ہوئی ہے، تو آج بھی کوئٹہ ویلی میں بھی اور ادھر زیارت، چمن اور گرد و نواح کا علاقہ جتنا بھی ہے اس میں بارش بھی متوقع ہے، اور ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی برفباری بھی ہو جائے. تو یہ ویو جب کل کوئٹہ اور ادھر بلوچستان سے شفٹ ہو جائے گی تو اس کے پیچھے پھر یوزلی کولڈ ویو آتی ہے. تو کولڈ ویو جب انٹر ہوگی تو کل سے سردی کی شدت بڑھ جائے گی. کراچی کتنا درجہ حرارت ہوگا منیمم رات کے وقت میں؟ ہاں سنگل ڈیجٹ جائے گا، یعنی 8-9 چلا جائے گا. جی رات میں سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے، مطلب 6 سے 8 کی رینج ہم دے رہے ہیں کل کے لیے. ہو سکتا ہے کسی جگہ پر 6، کسی جگہ پر 7، کسی جگہ پر 8. تو اس رینج میں ہی رہنے کا امکان ہے، یعنی 7-8 ڈگری اگلے 4-5 دن تک، اور پھر گریجولی 1-1 ڈگری بڑھ سکتا ہے. لیکن اوور آل مڈ آف جنوری تک 10-11 اس کے آس پاس ہی رہے گا. تو رات میں اور صبح میں خاصی ٹھنڈ جیسے کراچی میں پڑ رہی ہے پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے، تو یہ سلسلہ تھوڑا سا اور شدت پکڑے گا کل سے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی بچوں کو کورڈ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. سردار سرفراز صاحب تھینک یو سو مچ، چیف میٹر ہمارے ساتھ ہے ویدر اپڈیٹ پہ. مجھے آواز نہیں آ رہی آپ. ویدر اپڈیٹ سردار سرفراز صاحب نے ہمیں دی. اور اب ہم بات کریں گے انڈس ہاسپٹل کی، جہاں نئی ایمرجنسی عمارت کا افتتاح ہو گیا ہے، اور جب کو ذرا سا تھوڑا سا اگر آپ اوپر کریں گے تو ہم پڑھ سکیں گے. تو اس کی استعداد 300 سے بڑھ کر 1380 ہو گئی ہے. تو سروت گیلانی وہاں پر گئی ہیں، تو اب میں بتا جو رہا ہوں آپ کو، کیوں بتا رہا ہوں آپ بتائیں. اچھا میں اس لیے گئی ہوں بیکاز میں انڈس ہاسپٹل کی ایمبیسڈر بھی ہوں، اور باری صاحب اگر کسی کے وقت دے سکیں، باری صاحب کسی کو، اور وہ ٹور پرسنلی دے، تو یہ موقع ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہم نے. اور ہم چاہیں گے کہ ناظرین آپ کو بھی ہم بتائیں اور دکھائیں کہ کیا امیزنگ یہ فیسلٹی انڈس ہاسپٹل کی ہوئی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جس نے نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان بھی کہنا چھوٹا ہے عائشہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ پاکستانیز ہیں ان کا سر آج فخر سے بلند ہے. آج ہم انڈس ہاسپٹل میں موجود ہیں عبد الباری صاحب کے ساتھ. السلام علیکم باری صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو، میں پورے پاکستانیوں کو، بالکل پاکستان میں اور جو پاکستان سے باہر بھی ہیں جی، کیونکہ یہاں ہم جو پہنچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو ہے، مریضوں کی دعائیں ہیں جی، اور پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں پر بھی لوگ ہیں جی، انہیں کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے انشاءاللہ. تو آئیے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل جو ایکسپینشن پہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم سن رہے ہیں، آج وہ شکل ہمارے سامنے ہے. وہ ایمبولینس وہاں سے آئے گی اور اس پہ ٹرن کر کے یہاں اتارنا ہے مریض کو، اور مریض نے یہاں سے انٹر ہو جانا ہے، اور وہ وہاں سے ٹھیک ہے. تو یہاں آتے ہی، یہاں آ کے پھر اس کو جو ہے نا آپ ٹوکن مل جائے گا. ٹوکن کریں گے، بالکل رجسٹریشن کا ٹوکن. یہ ٹوکن آ گیا، ٹوکن آ گیا ہمارے یہ پاس. ٹوکن مل گیا اس کو، صحیح، تو وہ وہاں ویٹ کرتا ہے، اس کو کال آئے گی، یہاں رجسٹر ہو جاتا ہے یہاں پر. رائٹ. تو ہمارا ویٹنگ ایریا وہاں ہے، ہاں، اور پھر ہم یہاں سے اس کی رجسٹریشن کارڈ بن جاتا ہے. کارڈ ہونے کے بعد پھر ہمارا ایک یہ
ट्रायड क्लिनिक्स हैं जहाँ पर कैटेगरी डिसाइड हो जाती है राइट कि कि कहाँ सीरियसनेस जाना कितनी है। राइट ये पहली एमरजेंसी है हमारी। यहाँ पर बेसिकली जो जहाँ पर शहर कराची शहर में भी आपको इमरजेंसी डॉक्टर मुश्किल से मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे इंटीरियर्स में तो कोई मिलता ही नहीं। बिल्कुल तो इसलिए हम जो हमारे 2 हॉस्पिटल हम एक बदीन में चला रहे हैं और एक गवादर में चला रहे हैं, तो उसकी इमरजेंसी को हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से फिर वार्ड में चले जाएंगे। जैसे कैंसर के बच्चे आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आते हैं, हमारे पास एक रेजिडेंसी भी है, वहाँ रहना है उनका, खाना पीना फैमिली का और इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब। बिल्कुल। अच्छा बारी साहब, इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने आर्किटेक्ट्स ने साथ दिया? देखिए और- हमारा जो इसकी मेडिकल प्लानिंग, कॉन्सेप्ट डिजाइन, मास्टर प्लानिंग, ये सारा हमने सिंगापुर से कराया था। अच्छा सिंगापुर प्राइमरी क्लिनिक्स हैं 100 से ऊपर वो हैं, फिर यस मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, मोबाइल ब्लड हॉस्पिटल। सेंटर्स हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। कोविड के जमाने में जहाँ रिमोटेस्ट एरियाज में कोई नहीं जा सकता था, इंडस हॉस्पिटल ने बोट क्लिनिक्स भी बनाई हैं। बोट जी, जी, क्लिनिक्स सदर्न जहाँ पंजाब में, यस सदर्न पंजाब के इलाके में सैंपल लेना है तो ये यहाँ पर हो Blood जाएगा। अगर sampling। वो देखें आप, वो ये वैक्यूम सिस्टम है, तो यहाँ पर जितने सैंपल, ये जितने सैंपल्स होंगे वो कलेक्ट होके यहाँ से सीधा लैब में पहुँच जाएंगे। सर ये भी बहुत लाइक कमेंडेबल बात है कि अभी पूरा तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ है और फिर भी आप मरीजों को नहीं रोक रहे आने से, अभी हमने वो इसी तरीके से किया है, you सेफ्टी know करते that's हुए big. कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें ताकि एक लर्निंग भी होती है ना। initial हाँ, के साथ practice में एकदम आ सब शुरू करने में चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो बिल्कुल। हमने पहले इमरजेंसी से शुरू किया, फिर बट साथ साथ ट्रेन भी कर रहे हैं बिल्कुल आप, नर्सेस डॉक्टर्स बना भी रहे हैं, वो ट्रेनिंग रेजिडेंट्स बना सब रहे कुछ हो हैं। रहा है। हमारी So we're also यूनिवर्सिटी भी है, making the तो doctors, माशाल्लाह हाँ वो बिल्कुल जबरदस्त है। और सिर्फ डॉक्टर नहीं बना रहे, nurses भी। नर्सिंग भी बन रही है, पैरामेडिक्स भी बन रहे हैं, हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट भी बन रहे हैं, हमारे फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स बन रहे हैं। क्या बात है। तो तो वो जो माशाल्लाह हेल्थ नेटवर्क का एक वो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है, तो वो है, वो बिल्कुल सही है। अपने आप को स्क्रब करके आते स्क्रब हैं। करके अब ग्लव्स पहने होते हैं, अब हम स्टराइल होते हैं, हम किसी चीज को हाथ हाथ नहीं नहीं लगा लगा सकते। तो मैंने सिर्फ ये करना है, Oh, that's lovely. That's ये amazing. किया और फिर मैं थिएटर में आ गया और ये थिएटर है। Wow, look at the design. ये आप डिजाइन की बात कर ये रहे जो आप कह रहे हैं ना, आप होश में आके ये देखेंगे। हैं। Wow. देखिए हमने अब ये चीज़ जो बना दी है ना, ये अगले सदियों के लिए। सदियों के लिए वाकई। तो आज जो इस पर बेस्ट चीज़ है वो हमने लगा दी है। बड़ा अच्छा कनेक्टेड एंड वेरी पूरा। वेल डिजाइंड कि वो एक्सरे भी यहाँ पर है। बहुत दूर ना जाना पड़े। बिकॉज बिल्कुल। अ लॉट ऑफ टाइम्स हॉस्पिटल में होता है सबसे बड़ा मसला ये कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतना स्ट्रेस होता है। एक तो काउंटरलेस हॉस्पिटल है, सीईओ और स्टाफ भी उसी तरह ट्रीटेड होते हैं। स्टाफ कितना है अगर एक हम देखा जाए? तो टोटल नेटवर्क में हमारे पास 10,500 एम्प्लॉइज हैं। 10,500। ये ख्वाब एक असलियत में जब सामने आया है तो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये फायदा है। बारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं मजा आएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब जनाब बात कर लेते हैं फेक न्यूज़ की। जी Fake फेक न्यूज़ news की हम बात करते हैं। आजकल क्या है? एक टर्म बड़ी एक आम हो गई है वो कि फला खबर फेक न्यूज़ है, ये जाली है। असल खबर भी जाली हो जाती है, जाली खबर तो जाली है ही, वो असल बन जाती है। फिर एआई का ज़माना आ गया है।
اور اس میں ٹیکنالوجی حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے, اس کے تحت آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں فیک نیوز اور اصلی ریئل نیوز میں فرق کرنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے کی جو بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فیک نیوز کی دہائی دے رہے تھے, اور ان کے بارے میں کتنی ان کا پرسیپشن خراب بنایا جا رہا تھا. پھر دنیا وہی پرسیپشن لے کے آگے چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی ہیں. تو کسی بھی شخص کے بارے میں آپ کوئی بھی چیز اسپریڈ کر سکتے ہیں اور لوگ بائی کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ویریفائی کہاں سے کی جائے. بغیر ویریفائی کیے یہ سارے کام ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے زہیب, ہمارے پاس بہت ساری فارورڈڈ چیزیں آتی ہیں, ہم اس کو بغیر اوتھینٹیکیٹ کرے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے, تو ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے. ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ غزالہ یوسفزئی صاحب ہیں, وہ صاحب آئے انہوں نے جوائن کیا میں. جی غزالہ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. اے آئی نے اس دور میں فیک نیوز سے مطلب بہت, ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ صحیح نیوز اور فیک نیوز میں فرق ہم کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سرورت فار ہیونگ می. جیسے آپ لوگوں نے بات کی کہ ٹرمپ نے اس بات کا آغاز کیا تھا, فیک نیوز کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی, اور اس وقت کسی نے سیریس نہیں لیا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ساتھ ملک جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں وہ بھی فیک نیوز سے لڑ رہے ہیں, اور بہت سارے قوانین اور پریکٹسز جو ہیں وہ انہوں نے. سوری غزالہ, آپ کے اینڈ سے کوئی بیپنگ ساؤنڈ ہمیں آ رہی ہے جو ڈسٹرب کر رہی ہے. اب نہیں ہے, دیٹس فائن. جی فرمائیے, آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی اب بہتر ہے آپ کی آواز. جی میں کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ٹرمپ کا حوالہ دیا کہ ٹرمپ نے سب کی توجہ دلائی تھی فیک نیوز کی طرف, اور اس وقت کسی نے اس بات کو سیریس نہیں لیا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے باقی ممالک جو ہیں وہ کس طرح فیک نیوز کی زد میں آ گئے ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں. تو جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ فیک نیوز اور ریئل نیوز میں ہم فرق کیسے کریں, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بات کی کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی نیوز آتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, اور وہ ہمارے جو ایگزسٹنگ بلیوز ہوتے ہیں, جن چیزوں پہ ہم پہلے ہی یقین کرتے ہیں, جو ہمارا پہلے ایک رائے یا نظریہ بن چکا ہوتا ہے, اگر وہ اسی کو اور سپورٹ کر رہے ہوں تو ہم بغیر تحقیق کیے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, اس کو ملٹیپل سوشل اکاؤنٹس پہ شیئر کر دیتے ہیں, جس سے کافی لوگ جو ہے وہ مس لیڈ ہو جاتے ہیں. تو پہلا طریقہ تو یہی ہے فیک نیوز سے بچنے کے لیے کہ آپ اپنے سورسز کو ویریفائی کریں. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, یا کسی بھی ایسے بندے کی طرف سے جس پر آپ یقین کرتے بھی ہیں, تو اس کو ملٹیپل جو سورسز ہیں اس سے کراس چیک کریں. اب وہ سورسز ہونا بھی ضروری ہے نا, ملٹیپل سورسز کون سی ہوگی. جیسے ہمارے پاس ابھی دیکھیں کہ فیکٹ چیک ایپس بھی موجود ہے, اور وہ یہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ خبر فیک ہے, یہ خبر ٹھیک ہے. لیکن اب اگلا سوال یہی ہے کہ وہ فیکٹ چیک ایپس کو کیسے اوتھینٹیکیٹ کیا جائے, کہ کیا وہ کسی نظریے کو تو نہیں اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ کی گئی ہیں. تو بڑا کمپلیکس سا معاملہ ہے یہ. جی بالکل, اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا الگوریتھمس کی, ان کی جو ایمپلیفیکیشنز ہیں وہ آپ کو وہی چیز بار بار دکھاتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے پوائنٹ آف ویوز آپ کو دکھاتے ہیں, یا ایک ایسے بندے پلیٹ فارمز آپ کو دکھاتے ہیں سوشل میڈیا جو آپ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں, یا آپ کی جو نظریے ہیں اسی کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ملٹیپل پلیٹ فارمز یا ملٹیپل جو بھی سوشل میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, یا جو بھی آپ کے پاس سورسز ہیں نیوز کے, ان کو فالو کریں. فار انسٹنس آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ یقین رکھتے ہیں تو ساری آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ اس طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو, آپ دوسری طرف کے پوائنٹ آف ویو کو بھی کنسیڈر کریں. جب بھی آپ کے پاس کوئی ویڈیو یا کوئی بھی کلیم آتا ہے, آپ جو کریڈیبل سورسز ہیں, جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن پہ آپ کو یقین ہے, یا کچھ ایسے گورنمنٹ آفیشیل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جن کا آپ کو لگتا ہے کہ دیز آفیشیلز ول ناٹ لائی اباؤٹ دیٹ فیکٹ, آپ ان کی طرف ایک بار ضرور نظر دہرائیں. اپنے سورسز کو کراس چیک اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے. اپنے جو پرسنل بیلیفز بائسنس ہیں ان کو سائڈ لائن کرنا بہت ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, ریسنٹ پی ٹی آئی پروٹیسٹ میں ہم نے دیکھا بہت سارا اے آئی جنریٹڈ ڈس انفارمیشن پھیلا تھا, اور لوگوں نے اس پر یقین کر لیا ایسے سمجھ کے کہ یہ ریئل فوٹیجز ہیں. تو اگین آئی وڈ سے جو آپ کی پرسنل بیلیفز ہیں, جو آپ کے بائسنس ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھ کے کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنا کنٹینٹ کو بہت ضروری ہے. کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں, بے شک آپ اس بندے پہ یقین کرتے بھی ہوں, پھر بھی ملٹیپل
क्रॉस चेकिंग जो है उसी से आपको अंदाजा हो सकता है कि ये न्यूज़ जो है ऑथेंटिक है भी या नहीं। बिल्कुल ठीक है। गजाला, डिजिटल लिटरेसी की जब बात की जाए तो आप पाकिस्तान में आपको नज़र आती है कि हम डिजिटल लिटरेसी पे एक्चुअली यकीन रखते हैं और फेक और गलत न्यूज़ पे को कैसे बाइफिकेट कर सकते हैं? तो क्या हम अपने आप को एज ए नेशन डिजिटली लिटरेसी की तरफ ले जाते हैं? डिजिटल लिटरेसी सर्वर इज द नीड ऑफ टाइम। हम देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है। अगर हम साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें तो इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया लिटरेसी पे। तो पाकिस्तान में भी बहुत इसकी ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस ज़्यादा आम है कि जब भी कोई चीज़ आती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाता है, ऐसे ही है, इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये जो है एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है। तो दूसरे ममालिक कैसे इसको टैकल करते हैं गजाला? जी, सबसे पहले तो यही है कि डिजिटल मीडिया लिटरेसी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है अपने इंस्टीट्यूट्स में, ताकि बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो है बेसिकली अवेयर किया जा सके। पाकिस्तान में आई वुड नॉट से कि सिर्फ स्टूडेंट्स तक इसको लिमिटेड रखा जा सके, क्योंकि सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है, पास मोबाइल फोन है। तो जो बेसिक फैक्ट चेकिंग टेक्निक्स हैं, जैसे गूगल रिवर्स इमेज सर्चिंग है, वो एक बहुत बेसिक चीज है। उसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर का या किसी बहुत हाई टेक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ गूगल होना चाहिए और आपको सिर्फ ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी पिक्चर या वीडियो आपके टाइमलाइन पे आ रही हो आप उसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइए गजाला, ये भी बताइए कि साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ FIA भी करता है, ये कार्रवाई करना कितना जरूरी है? जो लोग जिम्मेदार हैं फेक खबर को फैलाने में, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, कानून की अमलदारी हो, तो फिर आधा तो काम हम तभी कर लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अगर हम लॉस की बात करें तो पाकिस्तान में कुछ लॉज इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, रीइंफोर्समेंट की कमी है। तो अगर एग्जिस्टिंग लॉ की रीइंफोर्समेंट हो जाए और नए फेक न्यूज़ के अगेंस्ट लॉज आ जाएं तो बहुत हद तक इसको कम किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया यूज़र्स को जहाँ तक हम अकाउंटेबल ठहराते हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं फेक न्यूज़ को फैलाने में। जैसे हम देख रहे हैं आजकल ट्विटर पे, एक्स पे हर दूसरा अकाउंट वेरीफाइड है। पहले जब कुछ अकाउंट वेरीफाइड हुआ करते थे तो उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हुआ करती थी, लोग उन पे यकीन करते थे और सोचते थे कि ये अकाउंट अगर इसके पास ब्लू टिक है तो ये इट्स अ क्रेडिबल सोर्स। लेकिन आजकल हर दूसरा अकाउंट क्रेडिबल बना हुआ है, आप उनका नाम नहीं जानते, उनका कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन वो अकाउंट वेरीफाइड है। और गजाला, एक और चीज है, एक और प्रॉब्लम है, तज्जिया यानी एनालिसिस और खबर, इसमें भी तो फर्क नहीं कर पा रहे ना अब लोग। अब बहुत से तज्जियाकार आप देखें कि वो एक सूरत-ए-हाल पर तज्जिया देते हैं, लोग उनके ओपिनियन को खबर बना के पेश करते हैं और वो भी इसी तरह पेश कर रहे होते हैं जैसे खबर है उनके पास। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ सटायर जो है उसको भी एक हार्ड न्यूज़ की तरह ले लेते हैं। तो अक्सर लोग बहुत मजाकन कोई खबर देते हैं या कोई कमेंट देते हैं और बाद में चल रहा होता है ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह, या सोशल मीडिया पे वो हर जगह वायरल हो जाता है, हालांकि उसकी कोई इतनी सीरियसनेस नहीं होती है न्यूज़ की। राइट, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? एक नेशनल लेवल पे अगर हम देखें, एक सोसाइटल लेवल पे देखें, तो इसको कैसे हम नॉन सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारा? जी, मुझे लगता है इस फेक न्यूज़ को कम्बाट करना या उसको रोकना एक प्लेटफॉर्म की या एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बस की बात नहीं, एक्टिव अप्रोच है। इसमें आप अपने आप को भी अकाउंटेबल ठहराएं, अपने साथियों को जो आपको फेक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको इनकरेज ना करें। बिल्कुल आउटफिट में बिल्कुल, अगर हम थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और कुछ रेगुलेशंस, मॉनिटरिंग को कोलैबोरेशन इसकी करें तो दोनों इफेक्टिव जो है वो मिलकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का फैलाव कम किया जा सकता है। गजाला यूसुफजई, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त। सबसे पहले तो कानून की अमलदारी का है इसमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, कानून है नहीं वैसे ज्यादा इस पे, तो पहले तो कानून बनाए, हाँ कानून बनाए भी बहुत जरूरी है। फूडी फ्राइडे की तरफ हम जा रहे हैं या एक ब्रेक हमने लेना है क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो गया, बस हमें क्लोजिंग करनी है। आपसे मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज।